Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a topic that must have caught everybody's attention recently. It was very controversial all around the news, which is the Agnipath scheme. Quite recently, all of us must have seen so many people burning public property, or you could say public transport, trains, buses and so on. That is because they were protesting against the Agnipath scheme, which was recently released on June 14, 2022. So in this particular session, I am going to tell you as to what is this entire controversy. But first of all, let's look into as to what is the Agnipath scheme all about. So Agnipath scheme 14 June, जैसे मैंने आपको बताया, was released on this particular date by the Cabinet Committee on Security. अब इस स्कीम की क्या बात करता है? It talks about recruitment of certain armed personnel. ठीक है, जो इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज है, which is the army, the navy and the air force, इसमें रिक्रूटमेंट की बात करता है. So it says that there are certain people from the age group of 17 to 23 जिनको रिक्रूट किया जाएगा in these armed forces through this Agnipath scheme. Now the controversial point here is that these people will be recruited for a period of 4 years. ठीक है, और 4 साल के बाद में only 25% of these people will be retained by the government, or you could say in these armed forces, and rest 75% of the people will go out of jobs. ठीक है, they will not have those jobs. However, the government has said कि it will, you could say, widen the scope of the opportunities that are provided to people. और वो इन लोगों को जो 75% लोग हैं जिनकी जॉब चली जाएंगी after 4 years, they will be given suitable employment opportunities. अब now you must be thinking कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम ये है कि आर्मी में या जनरली इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्विस कमीशन. शॉर्ट सर्विस कमीशन जनरली 14 ईयर्स के लिए होता है. अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि कोई भी अगर एक इंसान को अगर आप आर्मी में रिक्रूट कर रहे हो, सो दैट पर्सन जनरली वर्क्स फॉर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स. एक होता है परमानेंट सर्विस कमीशन. परमानेंट सर्विस कमीशन इज एनीथिंग विच इज अबव द शॉर्ट सर्विस कमीशन. बेसिकली 15 ईयर्स और अबव का अगर आप आर्मी में सर्व कर रहे हो तो यू आर बेसिकली अ परमानेंट सर्विस कमीशन में आप वहां पे आर्मी के एम्प्लॉय हो या फिर आप बाकी आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय हो. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं और जो पेंशन वगैरह होती है, ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सर्विस कमीशन के एम्प्लॉयज को मिलती है आर्म फोर्सेज में. अदरवाइज शॉर्ट सर्विस कमीशन को नहीं मिलती है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अग्निपथ स्कीम, यहां पर 14 साल भी नहीं है, यहां पर सिर्फ 4 साल ही है. सो दीज पीपल एंड 75% ऑफ दीज पीपल will go out of jobs after 4 years. So now the question here was कि what will these people do after 4 years and why is you could say यहाँ पर उनको क्यों गवर्नमेंट हटाना चाह रही है, right? One of the reasons for the same has been this that पेंशन का एक बहुत बड़ा you could say जो हमारा जनरली डिफेंस का बजट होता है ना, उसमें से पेंशन एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है. So government is trying to reduce the burden of pension and you could say include that money, और उस मनी को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं towards certain research and development, basically making our defense system better. So this particular scheme is going to involve or recruit certain people below the officer ranks, and these people who are recruited under this scheme will be given a tag called Agniveer. तो चाहे वो 4 साल के बाद नहीं रहेंगे आर्मी में, फिर भी उनको अग्निवीर बोला जाएगा. Now let's understand as to what are the financial opportunities that are available to people in this. So यहाँ पर बोला गया है कि 30,000 रुपीज मंथली सैलरी इज गोइंग टू बी गिवन टू दीज पीपल अग्निवीर, जो 4th ईयर के एंड तक आते आते 40,000 रुपीज हो जाएगा. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट 30% ऑफ दिस सैलरी, 30,000 होगा या बाद में 40,000 होगा, विल बी गिवन टू दी सेवा निधि स्कीम. तो उसके लिए सेट असाइड किया जाएगा. तो इनके हैंड में वो 30% कट के आएगा. वो जो 30% वाला जो अमाउंट है वो उनको 4 साल के बाद दिया जाएगा, और जितना अमाउंट वो सेट असाइड करेंगे 30% जितना भी हो पाएगा 4 साल के बाद, उतना ही इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी. सो एवरी अग्निवीर, चाहे वो 4 साल के बाद आर्मी से बाहर जाता है या फिर वो 25% वाली कैटेगरी में होता है कि वो और आगे 15 साल के लिए कंटिन्यू करता है, दे विल बी गिवन अ लंप सम अमाउंट ऑफ 11.71 lakhs अंडर दिस. ठीक है, उनको ये अमाउंट मिलेगा. इसके अलावा ऑब्वियसली अब आर्मी में जा रहे हो, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी एज वेल. तो उसके लिए दिस पर्टिकुलर स्कीम प्रोवाइड्स फॉर एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज फॉर दोज पीपल हु आर पार्शियली और दे आर इंजर्ड और वो काम नहीं कर सकते आर्मी में. उसके अलावा भी एंड 1 crore ऑफ इंश्योरेंस कवर इज गिवन टू दोज पीपल हु डाई बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑपरेशन, या किसी भी वजह से ऑन ड्यूटी उनकी आर्मी में रहते हुए डेथ हो जाती है. सो दिस इज यू कुड से सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट इज गिवन टू दीज पीपल हु सर्व एज अग्निवीर अंडर द आर्मी, राइट. एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो सिर्फ किसी कास्ट के या किसी रेजिमेंट के बेसिस पर नहीं होंगे.
ठीक है, तो दिस ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर होंगे. इट डजंट मैटर आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो, कौन से रेजिमेंट को बिलोंग करते हो. तो आपका जो पर्टिकुलर रिक्रूट से एग्जामिनेशन होगा वो इसी बेसिस पर होगा. इसके एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी आउट हो जाएंगे. राइट, सो द गवर्नमेंट हैज फाइनली डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस. I understand that there are a lot of controversial points around it कि मतलब 4 साल के बाद what will those people do, what if they do not get suitable employment opportunities and those on, and that is why I think the entire protest was happening here. But if you have any other doubt with respect to this particular scheme, please feel free to mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you guys. So that's it about the session from my side. If you want to study from me on Unacademy as well, आप मेरी classes में वहाँ पर आ सकते हो. I do a lot of free classes. In fact, I do a free class at 9:15 PM every single day. ठीक है, मैं हर रात को 9:15 PM पे क्लास करता हूँ. इट्स अ फ्री क्लास. ऑल ऑफ यू आर फ्री टू कम टू दोज क्लासेस. आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. वहां से आपको मेरी क्लास के लिंक्स भी मिल जाएंगे. उसके अलावा इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज, यू कैन यूज माय कोड मालपानी और केशव लाइव. You will get a 10% off on all the subscriptions. I have given इसका भी link in the description as well, so you can use those link and take your subscriptions as well. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.